Next part is market research, na? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Actually, market research is a part of marketing research. And to understand this market research, marketing research should also be understood. So firstly, we'll start with market research. Market research is actually a branch of marketing research. Market research is a branch of marketing research and covers only a few aspects of marketing, because market research is a part of marketing and overall concept is marketing research, and market research is a part of marketing research. So it's obvious it will cover only few aspects of marketing, not all aspects of marketing, right? So it is only a sub function of marketing research. It is concerned with the investigation and measurement of market demand only. मार्केट रिसर्च जो है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एंड मेजरमेंट ऑफ मार्केट डिमांड से रिलेटेड है. मार्केट रिसर्च जो है वो संबंधित है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एंड मेजरमेंट ऑफ वन थिंग, दैट इज मार्केट डिमांड. It studies the future and present customers. And it also includes the study of the customers as to their income, education, dealer preferences, etc. These customers' activities are studied, or say it includes the study of other things also, that is like size of market, customers' needs and motive, degree of competition, selling activities, details of the customers as to their income, education, and dealer preferences, etc. So in brief, it can be said that its scope is to study only what? Number one, the habits of customers who make up the market. Secondly, the suitability of products and their acceptance in the market. Thirdly, the reactions of the customers on the products. And lastly, the channel to be adopted for distribution. All right. Now we should talk of research. The research actually gets the facts needed to solve a problem. Research is carried out for what? Just to solve some problem? And to solve that problem, through research, facts are gathered, informations are collected.
data are collected. That means, again, in other words, the research looks forward to see what industry may do when it can no longer do what it is doing. माने वर्तमान समय में इंडस्ट्री जो कर रही है, अगर वो काम इंडस्ट्री नहीं कर सकती है तो उसे फिर क्या करना चाहिए. Research looks forward to see what industry may do when it cannot do longer what is it doing at present. Okay, so it has been seen that marketing basically consists of spotting the needs of customers and meeting them. माने कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, स्पॉट करना, एंड मीटिंग देम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. माने कस्टमर्स की नीड्स को बेस्ट पॉसिबल मैनर में सेटिस्फाई करना, सर्व करना. और इस काम में मार्केटिंग रिसर्च प्लेज अ की रोल. इन दिस प्रोसेस marketing research plays a key role. Now we have come to marketing research. Market research, then thereafter marketing research, because market research is a part of marketing research. So only market research is not sufficient. So we'll talk in toto about marketing research. So it helps the firm to acquire a better understanding of the consumer. मार्केटिंग रिसर्च से काहे चीज में हेल्प मिलती है? हेल्प मिलती है इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंज्यूमर. और काहे में हेल्प मिलती है? द कंपटीशन. और काहे में? एंड द मार्केट environment. Marketing research helps to gain, to attain, to understand in better way about the customer, say consumer, the competition, and the marketing environment. Right? So decisions on each element of marketing mix need marketing research support. मैंने जो भी एलिमेंट्स है मार्केटिंग मिक्स के हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उनके विषय में कोई भी डिसीजन हमको लेना है तो मार्केटिंग रिसर्च विल ऑलवेज हेल्प इन टेकिंग better decision regarding elements of marketing mix. Got it? Got it or not? Yes, sir. If anything is missing, please point out. I may explain it again. Okay, so note down 1-2 definitions of marketing research. So first one is the marketing research is a systematic, objective, and exhaustive search for the study of the facts relevant to any problem in the field of marketing.
relevant to any problem in the field of marketing. Should I repeat it? Yes, यस sir. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. Marketing research is a systematic, objective, and exhaustive search for and study of the facts relevant to any problem in the field of marketing. So this is definition of actually an unknown author. Then one more definition note down. This is the definition of Mr. Ronald. Mr. Ronald. Within inverted comma, you people may note down. Marketing research may be defined as एकता जी माइक ऑफ कर दीजिए. Marketing research may be defined as, within inverted comma, the systematic gathering, recording, and analyzing of data अच्छा एक चीज देखो हमें याद आ गई, हालांकि आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए. बता दें, थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट के है. Yes, sir. ये वर्ड हमने लास्ट वर्ड क्या बोला? एनालाइजिंग ऑफ डाटा. एनालाइजिंग डाटा. लास्ट वर्ड क्या था? सर यही था, एनालाइजिंग ऑफ डाटा. फिर हम कह रहे हैं लास्ट वर्ड बोलो. डाटा. ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है सर. Good, sir. पूरा है. हाँ? प्लूरल है सर. सिंगुलर क्या होता है इसका? डेटम होता है सर. Information. Information. सर रॉ नहीं. इंफॉर्मेशन होती है, वो सिंगुलर होती है. कंबाइन नहीं. कर देंगे तो डेटा बन जाएगा. जी नहीं जी नहीं जी नहीं, अभी किसी ने बोला था डेटम. डेटम बोला था ना किसी ने? जी सर मैंने बोला था. हाँ, इसका सिंगुलर होगा डेटम. डाटा प्लूरल है, डेटम वर्ड है वो सिंगुलर है. ओके, तो रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा about problems relating to the marketing of goods and services, एकता जी आपका माइक बार बार ऑन हो जाता है. मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज under essentially non-recurring conditions. Under essentially non-recurring conditions. Non-recurring समझते हैं ना?
सर जो Never- सडन हैपन होती है, बार बार हैपन नहीं होती, नॉन रिकरिंग नेचर की होती। हाँ तो इसको क्या बोलेंगे? सर जिसकी सर जो पुनरावृत्ति सडन ना हो। हैपन होती है। यस, जिसकी बार बार तो घटित ना हो या जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। Okay, so full stop, inverted comma, close. This was the definition of Mr. Ronald. Right? So actually now we can conclude or we can sum up regarding introduction of marketing research. कि marketing research may be defined as the systematic gathering, recording, and analyzing data about marketing problems towards the end of providing information useful in marketing decision making. Useful in marketing decision making. Okay, that means it helps in solving problems. It helps in solving problems. Again, in other words, it may be said that market research is only a sub function of marketing research. I'm concluding now. Market research is only a sub function of marketing research. Okay? And market research is solely concerned with the collection of information about the market only. About the market only. वही चीज है जहां से हमने शुरू किया था हम लोग. ठीक है? In modern method of marketing, it is necessary. In modern method of marketing, it is necessary for a producer or manufacturer to possess या collect या gather exact and accurate information. Exact and accurate information. ठीक? अब कौन सी इंफॉर्मेशन? एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, प्रोसेस करें, मगर कौन सी, किस चीज की इंफॉर्मेशन? तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू किस चीजों से, किन चीजों से संबंधित इंफॉर्मेशन हमको चाहिए? किन चीजों से संबंधित इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए? मींस मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के पास होनी चाहिए. ठीक है? कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन. ठीक है. और बताइए. कस्टमर्स कहाँ पर लोकेट है और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है प्रोडक्ट के लिए, और क्वांटिटी कितनी हमें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. ठीक है. और सर कस्टमर उस प्रोडक्ट के अलावा कौन सा और प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक. और एग्जिस्टिंग मार्केट में कंपटीशन कितना है उस प्रोडक्ट को लेकर के. ठीक है. ठीक है. और बताइए.
और चीजें बताइए, और एस्पेक्ट कवर करिए। सर कंज्यूमर का परचेजिंग पावर, क्योंकि उसके फिर जो प्राइस हमें उस हिसाब से कोट करना पड़ेगा। नहीं भाई, अब इस चीज से हम सहमत नहीं है कि अगर किसी के पास मान लो परचेजिंग पावर है तो उसको सस्ती भी चीज महंगी दे दोगे। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। ये तो अगेंस्ट एथिक्स होगा ना। यस सर। सर वो न्यू प्रोडक्ट्स पे अप्रोच कर सकता है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन अगर उसके पास होगी तो फर्दर वो न्यू इनोवेशन करके कुछ नया ब्रांड भी ला सकता है। बेटा वो ठीक है, जैसे अभी बोला ना, तो आई थिंक सालिहा ने, जी जी सर। सालिहा, आई थिंक अगर हम सही नाम पढ़ रहे हैं तो, हाँ, Yes. जैसे इन्होंने इन्होंने बोला ना कि प्राइस हम सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू परचेजिंग। सर केवल परचेजिंग पावर एक एस्पेक्ट नहीं, और भी एस्पेक्ट होते हैं प्राइस सेट करने में सर, मतलब वो एक फैक्टर हो सकता है परचेजिंग पावर कंज्यूमर की कितनी है। नहीं, एक एक फैक्टर ये हो सकता है, अगर कंज्यूमर जो सक्षम है वो और भी ब्रांडेड चीजें चाह रहा है तो मार्केट में इनोवेट करके हम न्यू ब्रांड्स और भी मतलब ऐसी कॉस्टली चीजें बना करके न्यू इनोवेशन कर सकते हैं। हाँ, वो चीज बेटा ठीक है, मगर हम जो भी प्राइसिंग करते हैं वो प्राइसिंग तो अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से करते हैं। वो कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग होती है, जितना प्रोडक्ट की है ना? कॉस्ट आती है। जी हाँ, जी हाँ, और उसमें एक सर्टेन परसेंट प्रॉफिट लेंगे। और प्रेजेंट टाइम में आई थिंक रेयरेस्ट है कि कहीं मोनोपोली, जी सर, है ना। क्योंकि सारे प्रोडक्ट की वेरिएंट्स हैं। रेयरेस्ट है कि कहीं पर मोनोपोली हो। तो जैसे ये अगर परचेजिंग पावर ज्यादा है तो के अकॉर्डिंग करेंगे। ये इसमें एक पॉइंट या एक फैक्टर हो सकता है। तो मैंने हम इस चीज से सहमत नहीं है, और ये चीज अगेंस्ट मार्केटिंग के एथिक्स के अगेंस्ट होगी। तो ये नहीं करना चाहिए, और किसी को दिमाग में रखना भी नहीं चाहिए कि हम ऐसा करेंगे कि अगर कोई ज्यादा पैसा दे सकता है तो हम ज्यादा करें। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अब चलो इसी चीज में याद आ गया हमको। अब जैसे मान लो आप घर में काम करने के लिए, काम करने का मतलब कि मान लीजिए कोई प्लम्बरिंग का वर्क है, इलेक्ट्रिसिटी का वर्क है, या इस तरह का कोई काम करने के लिए आपने किसी को बुलाया, तो अब नॉर्मली इन लोगों में ये चीज देखी जाती है कि काम बहुत छोटा सा है, मगर उन्हें लगा कि अब ये परेशानी में फंसे हुए हैं, तो उस छोटे से काम के लिए भी वो इतना पैसा बता देंगे कि आपको लगेगा अरे यार इतने पैसे। या फिर दूसरे तरीके से बताएंगे, वो देखेंगे कि पार्टी पैसे वाली है, सब कुछ वो देने में लिबरल है, तो वो मुंह खोल के मांगेंगे वहां पे। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि मान लीजिए सिंपल एक सपोज एक टैब बदलनी है, और वो एक टैब बदलने आया, अरे नॉर्मल भाई एक टैब बदलने के लिए आदमी 10 20 50 रुपए ले लेगा। अब कोई टैब बदलने आया ही, उसने देखा सब कुछ है और वो उसने कहा 200 रुपए लेंगे, या पहले उसने बदल दिया फिर उसने कहा 200, फिर आपने पूछा क्या देना, उनका 200 रुपए दो। तो अब जितने की टैब नहीं लाएगा आदमी, उतना जो है चेंज करा ही देना पड़ेगा। तो ये सब एथिक्स के अगेंस्ट है, मगर अब उनको एथिक्स से और मार्केटिंग से और उससे मतलब नहीं है। मगर एक प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। तो एनीवे, काफी चीजें आप लोगों ने बताई कि इंफॉर्मेशन किन चीजों से रिलेटेड हमारे पास मिस मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के पास होनी चाहिए। तो उनको कुछ एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग समझ लेते हैं कि टाइप ऑफ गुड्स नीडेड बाय कस्टमर्स। फर्स्ट नंबर 1 क्या हो गया, टाइप ऑफ गुड्स नीडेड बाय कस्टमर्स, ठीक है। फिर सेकेंडली, टाइम व्हेन दे वांट द प्रोडक्ट्स, किस समय पर चाहते हैं, ठीक है। फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्ट को हम कस्टमर तक पहुंचाने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या यूज करेंगे। देन राइवल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, माने कंपटीशन में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है। समझ आई बात। अब जैसे यस सर। जैसे कंपटीशन की बात बताएं और राइवल प्रोडक्ट की बात बताएं।
सर्दियों का सीजन चल रहा है, यस सर। सबकी स्किन कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है, मीन्स सभी लोग कोई ना कोई क्रीम यूज करते हैं, यस सर। मेजॉरिटी यूज करती है, मान के चलो। हाँ, तो मोस्ट क्लोज राइवल्स बताइए इन कोल्ड क्रीम में, 2 और पुराने हैं। बोरो प्लस एंड बोरोलीन। किस तरह से? सर वैसलीन और बोरोलीन। वैसलीन एंड बोरोलीन। चलो अच्छा और बताओ। So Pond's and Vaseline. वैसलीन पेट्रोलियम जेली बनाती, वैसलीन की कोल्ड क्रीम आती क्या? नो Yes, so सर। moisturizer आता है, moisturizer आता है सर। मॉइस्चराइजर तो अभी 1-2 साल से उनका आना शुरू हुआ है, बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस किया है इस फील्ड में उन्होंने वैसलीन में। नो सर, बोरो प्लस कोल्ड क्रीम नहीं आती है सर, पॉन्ड्स में आती है। पॉन्ड्स से निविया है, आयुष है और बोरो प्लस है सर, ये सारे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, मेरा बेसिक क्वेश्चन जो था और उस क्वेश्चन का जो सबसे पहला आंसर दिया गया था वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। पहला आंसर क्या दिया गया था? जिसने दिया था वो ना बोले। बोरोलिन एंड सर वो क्या बोरो प्लस, राइट। मोस्ट क्लोज राइवल यही 2 है जो कि एक ही सेगमेंट में है। जिस तरह की बोरोलीन है उसी तरह का बोरो प्लस है। अब जैसे इसी में देखो, एक एग्जांपल देख लो, बोरोलीन आती है कि नहीं आती? अब सर आती है, सर बहुत ही जगह आती है। हाँ, आ रही है सर अभी। कितने लोगों ने लेटेस्ट इस साल खरीदी? सर मैंने खरीदी है। अच्छा, आपको इस प्रोडक्ट के विषय में कैसे पता चला? सर बहुत पहले से यूज कर रहे हैं सर, 10 साल से यूज कर रहे हैं उसको। अच्छा 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 अच्छा। और बाकी लोग? अच्छा, 10 साल से क्यों, 10 साल से आपने इसका साथ क्यों नहीं छोड़ा? सर अच्छा लगता है, और जो गर्मी में भी जो है आफ्टर से यूज करते हैं, कहीं कट पिट गया तब भी जो काम आ जाता है सर, इसलिए जो है। कट गया तो समझ में आया, पिट गया नहीं समझ में आया। चोट लग गई सर, मतलब दब हो गया तब उस जगह भी काम आ जाता है। अरे कट गया तो समझ में आया भैया, पिट गया नहीं समझ में आया। सर मतलब मल्टीपर्पज इनका कहना है कि हर जगह वर्क कर लेती है वो। मतलब नहीं समझना है, पिट गया क्या मतलब है? निरर्थक शब्द सर, से रोटी वोटी बोलते हैं वैसे ही सर बोल दिया। ठीक है, वो बोलने में आ जाता है। एनीवे, तो देखिए सिर्फ यहां पर कहने का पर्पस ये था कि मोस्ट क्लोज राइवल, और बोरोलीन अपने सेगमेंट में ओल्डेस्ट वन है और बहुत पुरानी है। और जिस समय, एक समय था कि सिर्फ मोनोपोली थी बोरोलीन की, ब्लैक मार्केटिंग होती थी बोरोलीन की, डुप्लीकेसी होती थी बोरोलीन की, राइट। तो उसकी सक्सेस को देख करके ही तब ये कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, राइवल प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था, बोरो प्लस। और हम समझते हैं कि आज की डेट में जितने लोग क्लास में बैठे हैं, शायद किसी ने देखा हो बोरोलीन का एड, देखा कहीं? यस सर, आता है टेलीविजन पर। टेलीविजन में आता है? यस सर, Yes, sir, विद्या आता बालन है। करती है। विद्या बालन इज ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, तो एनीवे लेटेस्ट आना शुरू हुआ होगा। क्यों, तुम 10 साल से यूज कर रहे हो, तुमने कितनी बार देखा इसका एड? पहले नहीं देखा था सर, अब जल्दी में ही देखना शुरू किया।
नहीं, मतलब जैसे मान लो ये लोग बता रहे हैं कि विद्या बालन ऐड कर रही हैं, तो प्रेजेंट टाइम में 1 साल 2 साल से आया होगा। हाँ ये सर, एक साल से ही आया है मेनली। नहीं सिर्फ सर, 3-4 साल से आया हुआ है वो। बोरो प्लस का ऐड तो सर आता ही रहता है। इसलिए पता भी नहीं उसके विषय में। चलो फिर भी आप ये मान के चलिए कि अगर दोनों प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट की बात करें तो किसका ज्यादा एडवर्टीजमेंट है? बोरो बोरो प्लस। प्लस का। एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंसेस किसके ज्यादा हैं? बोरो बोरो प्लस। प्लस का। राइट। तो चलिए, तो एक इंफॉर्मेशन के विषय में बात हो गई, हम लोगों ने बात किया, इंटरेक्ट भी किया, तो कुछ जानकारी भी आप लोगों को भी मिली, हमें मिली और नए एंगल से मिली। तो नेक्स्ट थिंग हमने लास्ट क्या बताया था? राइवल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। देन नेक्स्ट वन, कॉम्पिटिशंस इफ एनी। देन क्वांटिटी वांटेड। देन एक्चुअल बायर्स। एक्चुअल बायर कितने होंगे किसी प्रोडक्ट के? देन the reason for requiring a particular product, the reason for requiring a particular product, then the size of the market, lastly the price acceptable by the buyers, the price acceptable by the buyers। अब देखिए, इसके संबंध में ये आप नहीं कह सकते ये नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल कोर्स की बात हो रही है, एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं हो रही है, समझे ना? एक्सेप्शनल केस की बात नहीं हो रही है, या एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की बात नहीं हो रही है। हाँ, जैसे एक बार आई थिंक जस्ट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन वो हुआ था कि नमक खत्म हो गया, नमक बिकना बंद हो जाएगा, तो नमक के पैकेट कितने महंगे बिके थे, याद आया? रूमर हुई थी। यस सर, चोरी भी हुआ था। हाँ हाँ हाँ, तो कहने मतलब एक्सेप्शनल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ नॉर्मल सिचुएशन की बात हो रही है कि प्राइस एक्सेप्टेबल बाय द बायर्स। तो ये चीजें हैं कि जिनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मींस एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मस्ट बी देयर विद द प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर। समझ में आ गई बात? समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। बीच में हम लोगों ने कई चीजें डिस्कस कर ली। कंटिन्यूएशन बना कि नहीं बना? कंटिन्यूएशन में आए कि नहीं आए? यस सर। हाँ, हमने बताया था ना कि इन मॉडर्न मेथड या मॉडर्न मार्केटिंग इट इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर टू पोसेस एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट या रिलेटिंग टू। तो इन चीजों से रिलेटेड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन must be possessed by manufacturer or producer. Got it? Now, objectives of marketing research. Marketing research के objectives क्या हो सकते हैं? तो बहुत सारे ढेरों objectives है। हाँ, तो हम बोलना शुरू करते हैं, आप लोग सुनिए और इफ यू पीपल वांट आप नोट करिए। To understand the economic factors affecting the sales volume and their opportunities. To understand the economic factors affecting the sales volume and their opportunities. Then secondly, to understand the competitive position of rival products. To understand the competitive position of rival products. Then
evaluate the reactions of consumers and customers. Then to study the price लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए. Evaluate the reactions of consumers or say customers. evaluate the consumer. Evaluate the reactions. Evaluate the Reactions of consumers or say customers. Huh? Okay, sir. Then to study the price trends. Then to study the system of distribution. Then to understand the advantages and limitations of the products. Then to find new methods of packaging और न्यू मेथड्स ऑफ पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी जब हम कंपैरिजन करेंगे बाय कंपेयरिंग अदर सिमिलर पैकेजेस ये हमारी ही तरह के उसी तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स की पैकिंग कैसी है अकॉर्डिंगली हमें अपनी पैकिंग की मेथड को भी एडजस्ट करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा देन to analyze the market size. To analyze the market size. Then, to know the estimation of demand. Then, to evaluate the profitability of different markets. Sir, to estimate the demand. To evaluate the profitability of different markets. Then study the customer's acceptance of products. To study the customer's acceptance of products. To assess the volume of future sales. Then to study the nature of the market. Its location and its potentialities. Its location and its potentialities. Then to find solutions to problems relating to marketing of goods and services. सर ये वाला रिपीट कर दीजिए सर लास्ट रिपीट कर दीजिए. To find solutions to problems relating to marketing of goods and services. Relating to marketing of goods and services. Then next one is to evaluate policies and plans. To evaluate policies and plans in the right course of action.
in the right course of action. और एक दो नोट कर लो, खूब सारे तो हो गए ऑब्जेक्टिव्स. To know the development of science and technology. To know the development of science and technology. Then to know the complexity of marketing. To know the complexity of marketing. और lastly, बहुत important है ये objective. To measure the effectiveness of advertising. To measure the effectiveness of advertising. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे मार्केटिंग रिसर्च के. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, major area of marketing research can be enumerated or can be identified or can be discussed. Okay? On the basis of objectives of marketing. Major area of research, marketing research क्या होंगे? पहला जो आएगा इसमें research on market. Research on markets. ठीक है, तो मार्केट से रिलेटेड क्या रिसर्च करनी होगी हमको? दिस इंक्लूड्स मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट शेयर एंड मार्केट पोटेंशियल. ठीक है, और साइमल्टेनियसली it is a study of the size, location, nature and characteristics of markets and characteristics of markets. ठीक है, and market is segmented. Market is segmented माने विभाजित होता है, उसका विभक्तीकरण होता है. Segmented on the basis of many variables. जैसे कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं? एज, sex, income, education, occupation, religion, etc. ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स या इन शॉर्ट कह सकते हैं हम लोग कि इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टडी ऑफ हु, व्हाट, वेयर, when, why and how of actual and potential buyers. Of actual and potential buyers. ठीक है, तो पहला क्या आया? रिसर्च ऑन मार्केट. अब दूसरा है रिसर्च ऑन सेल्स. रिसर्च ऑन सेल्स.
तो ये क्या क्या कवर करता है? सेल्स फोरकास्टिंग, कोटा सेलिंग, sales territory design, and other sales related activities. ये सब फोरकास्टिंग, कोटा सेलिंग, उसके बाद आपने क्या बोला है सर? क्या बेटा? सेल्स फोरकास्टिंग, कोटा सेलिंग, इसके बाद भी एक फैक्टर बोला आपने, Sales territory design. सेल्स, Sales territory design. ओ अच्छा, टेरिटोरी डिजाइन, Sales design and other sales related activities. ओके सर, थैंक यू। ठीक है, दैट मीन्स कि हम लोग इसमें एनालाइज क्या क्या करेंगे? इट एनालाइजेस व्हाट? इट एनालाइजेस सेल्स वॉल्यूम, salesman performance data, new product performance in test markets, etc. थर्ड चीज क्या आई? रिसर्च ऑन प्रोडक्ट। पहला था रिसर्च ऑन मार्केट्स, दूसरा था रिसर्च ऑन सेल्स, तीसरा क्या है? रिसर्च ऑन प्रोडक्ट। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीजें कवर करता है ये? इट कवर्स या इट इन्वॉल्व्स या इट इंक्लूड्स न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, brand image, concept tests, product tests, test marketing of new product, etc. Test marketing of new product, etc. तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? प्रोडक्ट की स्वॉट एनालिसिस करते हैं। Here we do the SWOT analysis of the present products, और से we analyze the strength and weaknesses. SWOT अगर नहीं समझ में आ रहा है डिलीट कर दो। We analyze the strength and weaknesses of present products in relation to diversification and simplification, etc. Should I repeat? No, sir. Then next one is advertising and promotion research. Advertising and promotion research. इसमें क्या क्या आएगा? तो it covers media research, copy research, merchandising, packaging, and measuring effectiveness of various methods of advertising and promotion, and measuring effectiveness of various methods of advertising and promotion. Then corporate group, method of product,
क्या Pardon? बोला है सर? वेरियस मेथड ऑफ Advertising and promotion. ओके ओके सर, सॉरी सर. Then corporate growth research. So this actually emphasizes the studies on economic and technological forecasting. Economic and technological forecasting. और क्या? Measuring company image. Profitability measurement. हाँ, सब कॉमा अगर नोट करो, सब कॉमा लगाते जाइएगा. Economic and technological forecasting, measuring company image, profitability measurement, merger, acquisitions, location, etc. Measurement, merger, acquisitions, location, etc. Then lastly, business economic research. Business economic research. So it is actually concerned with economic forecasting and business trend analysis and business trend analysis, right? Planning and product mix. Planning and product mix. Price and profit analysis, etc. are included. They are considered in business economic research. ठीक है? Now, अब बिल्कुल आपका मेन पार्ट आया कि हाउ डू वी कंडक्ट मार्केटिंग रिसर्च. प्रोसीजर क्या है इसका? ठीक है, तो देखिए इसके प्रोसीजर में 7 स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होंगे वो? सबसे पहला होगा डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम. Define objectives and identify problems. Then उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? Determine information needed. Determine information needed. Then next step होगा determine the sources. कहां से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे? Determine the sources. Then next step होगा decide research design. Decide research design. Then next डेटा कलेक्ट हो जाएंगे, तब क्या होगा? tabulating and interpreting the data. Tabulating and interpreting the data. Then second last step होगा आपका preparation of report. Preparation of report. And last one, follow up recommendations. Last one, follow up recommendations.
Last one is follow up recommendations. हो गए सारे स्टेप, नोट हो गए? जी सर। कितने स्टेप हुए? 7 टोटल स्टेप 7 सर। बताए अभी आपने। यस, 7 स्टेप। तो अब देखिए पहला स्टेप क्या है? Define objectives and identify problems. यस, तो पहला क्या है? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। पहले हमें ये पता चले कि प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों मार्केटिंग रिसर्च वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इन ऑर्डर टू कैरी आउट एनी रिसर्च प्रोग्राम, द रिसर्चर मस्ट नो द बेसिक प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? that means कि रिसर्चर मस्ट बी क्लियर इन हिज और हर माइंड कि व्हाट इज एग्जैक्टली नीडेड, उसे चाहिए क्या। दैट मीन्स ही और सी मस्ट नो द बेसिक प्रॉब्लम। और जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है तो मतलब मार्केटिंग प्रॉब्लम is given importance and not the marketing research problem. माने रिसर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें नहीं ध्यान देनी, मार्केटिंग में हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हम मार्केटिंग रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च की प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम क्या है, दिस मस्ट बी वेरी क्लियर इन द माइंड ऑफ रिसर्चर। इन द माइंड ऑफ रिसर्चर। ठीक है, अच्छा जब प्रॉब्लम क्लियर हो गई, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, फिर क्या होगा? द रिसर्चर शुड फॉर्मुलेट अ प्लान। एक प्लान बनाना चाहिए। व्हेन द प्रॉब्लम इज डिफाइंड, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, प्रॉब्लम डिफाइन हो गई, तो उसके बाद क्या होगा? हमें एक प्लान फॉर्म करना चाहिए, प्लान चॉक आउट करना चाहिए। ठीक है, किस पर्पस के लिए? कि हम नेचर ऑफ प्रॉब्लम को समझ लें और किस तरह से उसे सॉल्व करना है पहले ये समझ लें। ठीक है, तो व्हेन द रिसर्चर गेट्स अ क्लियर आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम, जब रिसर्चर को प्रॉब्लम के विषय में बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि ये प्रॉब्लम है, उसने प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लिया, समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, गेट्स अ क्लियर आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम, तब क्या करेगा वो? द रिसर्चर एनालाइजेस द सिचुएशन, सिचुएशन को एनालाइज करेगा एंड अंडरस्टैंड्स मोर अबाउट द प्रॉब्लम। सिचुएशन को समझने के बाद वो ये प्रयास करेगा, वो ये ढूंढेगा कि प्रॉब्लम को अब हम और गहराई से और डेप्थ में और वाइड विड्थ के साथ हम प्रॉब्लम को पहले समझें। समझ गए ना? समझ में आ गई बात कि नहीं? अरे बोलो, कुछ समझ में आ रहा भैया कि हम बस बोलते जा रहे हैं? नहीं सर, आ Yes, रहा है। sir, यस सर, समझ में आ रहा। हाँ, कि बस हमें वन साइड कम्युनिकेशन चल रहा है, बाकी सब अपना मौज कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं फिर अकेले हमारे बोलते रहने से बेटा। ठीक है, तो द रिसर्चर एनालाइजेस द सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड्स मोर अबाउट द प्रॉब्लम। ठीक, फिर क्या होगा कि द इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, और जिसको कह सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन, consists of getting background information relating to the problem. Means in the first hand, preliminary level पर
वो बैकग्राउंड के संबंध में माने प्रॉब्लम की बैकग्राउंड को समझेगा और उसकी बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो कलेक्ट करेगा और उसकी स्टडी करेगा। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। हाँ, पहला ये बताया डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। Yes, Right. sir. Now second step, determining the information needed। जब प्रॉब्लम समझ में आ गई तब फिर रिसर्चर क्या करेगा, वो ये डिटरमिन करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज नीडेड। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज नीडेड, मगर ये वो डिसाइड करेगा कीपिंग इन माइंड क्या, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो ये डिटरमिन करेगा कि हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. ठीक, तो द इंफॉर्मेशन शुड बी नेसेसरी एंड रेलिवेंट। ऐसा क्यों दिमाग में रख के जो हम देखेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, प्रिसाइज वे में जो भी रेलिवेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन है सिर्फ उन्हीं को हम पाने का प्रयास करेंगे कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि इफ अवेलेबल डाटा आर सफिशिएंट, माने ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अगर, तो अगर वही सफिशिएंट है तो ठीक है, या अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो हमें क्या करना होगा, फ्रेश डेटा हैव टू बी कलेक्टेड। एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, यदि है तो ठीक, नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फर्दर प्लान करेंगे कि हम नया डाटा कैसे कलेक्ट करें। ठीक, तो इंफॉर्मेशन हमको कौन सी चाहिए ये डिसाइड किया, फिर हम क्या डिसाइड करेंगे, डिटरमिनिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डिटरमिनिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो कहां से मिलेगी। तो सोर्स वी ऑल नो दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड दूसरा क्या होगा, Secondary source. सेकेंडरी सोर्स। ठीक, तो प्राइमरी सोर्स क्या होगा कि व्हेन इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड डायरेक्टली स्पेशली फॉर द प्रॉब्लम, तो इट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ठीक, और व्हेन द इंफॉर्मेशन इज already collected by someone for some other purpose and at the same time is helpful to the problem on hand, it is known as secondary data। कि मान लीजिए किसी ने किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई डेटा पहले कलेक्ट किया था, वो डेटा अवेलेबल है और हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड है और हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी वो डाटा काम आ सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ये तो समझते हैं ना सब लोग? Yes, sir. ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसमें प्रोसेस में, डिसाइडिंग रिसर्च मेथड। डिसाइडिंग रिसर्च मेथड्स था ना, रिसर्च डिजाइन, डिसाइडिंग रिसर्च मेथड्स। तो व्हेन सेकेंडरी डाटा आर इनसफिशिएंट, अगर सेकेंडरी डाटा से मिल गया तो सीधे एनालाइजिंग शुरू हो जाएगी, एनालिसिस। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो हमें क्या होगा, हमें प्राइमरी डाटा जरूरत पड़ेगी। तो व्हेन सेकेंडरी डाटा आर इनसफिशिएंट तो रिसर्चर हैज टू बी सेटिस्फाइड विद द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, तो उसे फिर प्राइमरी सोर्स ढूंढने होंगे, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, और ये सोर्सेस कैसे डिसाइड करेंगे, मे बी थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड और
सर्वे मेथड। ये तो जानते हैं ना सब, यस सर। स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इनमें से कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। ऑलराइट, इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप है टेबुलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। टेबुलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो when data is when once data are collected, तो कलेक्शन के बाद क्या करेंगे? They will be classified, tabulated into statistical summarization। यही तो करेंगे ना? यस सर। उसके बाद क्या होगा? इंटरप्रिटेशन वर्क विल बी स्टार्टेड। ठीक, एंड दिस इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, इजंट इट? यस सर। अच्छा, और इंटरप्रिटेशन से भी पहले इंपॉर्टेंट स्टेज क्या है? सबसे पहले वही, अगर नींव खराब हो गई, प्राइमरी इंफॉर्मेशन खराब हो गई, माने डाटा खराब हो गया। रिगार्डिंग स्टैटिस्टिकल डाटा, इट इज सेड और नॉट, statistical data like a clay which from we can make a goddess or devil। यस सर। कि अगर रिसर्चर बायस्ड हो जाए तो रिसर्चर जो प्रूव करना चाहता है वो उसी से संबंधित, उसी के फेवरेबल डाटा वो कलेक्ट करेगा। यानी रिसर्च के पहले एक हाइपोथेसिस बनती है ना, एक हाइपोथेसिस होती है ना। हाइपोथेसिस नाम सुना है ना? जी सर, जिसमें दो कंडीशन में एक हैपन होगी, दूसरी सेम नहीं होगी, उसको आधार माना जाता है। या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा। जी जी। ये घटित होगा या नहीं होगा, या ये चीज अच्छी है या खराब है। तो आप जो प्रूव करना चाहे उसी के फेवर के डाटा कलेक्ट कर ले, इफ रिसर्चर इज बायस्ड। और जब डाटा, वही जो डाटा कलेक्ट करेंगे उन्हीं का आप जो है टेबुलेशन करेंगे, समराइजेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन करेंगे, फिर उन्हीं का आप इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो फिर वही रिजल्ट निकलेगा जो आप निकालना चाहते हैं। तो क्या मतलब है कि जो डाटा आप कलेक्ट करें वो इम्बाइस्ड होने चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन वर्क, तो हमने क्या बताया कि द इंटरप्रिटेशन इज द इंपॉर्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। Correct interpretation of data makes a research meaningful. Correct interpretation of data makes a research meaningful. समझ गए? अच्छा, उसके लिए हम और क्या हेल्प लेते हैं कि या तो मीन कैलकुलेट करेंगे या मीडियन कैलकुलेट करेंगे। हाँ, तो चाहे मीन कैलकुलेट करें चाहे मीडियन कैलकुलेट करें, तो मीन और मीडियन क्लासिफाइज द नेचर ऑफ द एवरेज रिस्पोंडेंट। ठीक, फिर हम क्या करते हैं? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये भी बहुत यूजफुल होते हैं काहे में? इन मेजरिंग वेदर टू ऑकरेंसेस रिलेटेड टू ईच अदर। इसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं? कोरिलेशन एंड एसोसिएशन का यूज करते हैं, विच प्रोवाइड अ मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड या मोर सोफिस्टिकेटेड रिजल्ट्स फॉर मेकिंग सेम काइंड ऑफ एनालिसिस डन इन क्रॉस टेबुलेशन।
ठीक है, और इन्हीं सब के साथ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ऑफ दीज इज रिग्रेशन एनालिसिस इफ रिक्वायर्ड। तो ये क्या करती, दिस अलाउज द रिसर्चर टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप विद between a dependent variable and one or more independent variables, and to determine whether or not one variable causes another। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल करोगे तो और समझ में आएगा, हम थ्योरेटिकल वे में समझा रहे हैं। Then next is preparation of report। जब ये सब हो गया, डेटा वर्क हो गया, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के बाद रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। रिपोर्ट का मतलब क्या है कि जो भी हमारे रिजल्ट्स आए उनको हम रिटन फॉर्म में तैयार करेंगे। दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट ऑफ द रिसर्चर। दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट ऑफ द रिसर्चर। तो ये रिपोर्ट्स क्या चीजें हैं कि द लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड प्रॉपरली पैराग्राफ्ड। और सामान्यतः एक रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरह से उसका फॉर्मेट होना चाहिए, तो उसमें टाइटल ऑफ द रिसर्च मेंशन होना चाहिए, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च उसमें क्लियर कट मेंशन हो, और क्या क्या चीजें हो, मेथोडोलॉजी यूज्ड, ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्लानिंग ऑफ द रिपोर्ट, अ टेबल ऑफ कंटेंट्स along with charts and diagrams followed in the report। जिन जिन चीजों का यूज किया है आपने, टेबल्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, इनको सबको मेंशन करना चाहिए। देन क्या आएगा, द मेन रिपोर्ट। फिर कंक्लूजन्स ड्रॉन एंड रिकमेंडेशंस सजेस्टेड। कंक्लूजन्स ड्रॉन एंड रिकमेंडेशंस सजेस्टेड। और लास्ट है अपेंडिसेस। ठीक, लास्ट पार्ट है इसमें, लास्ट स्टेप फॉलो अप स्टडी। ठीक है, कि जो स्टडी की गई है उसका रिपोर्ट बनी, उसको फॉलो अप किया जाए। फॉलो अप करने से क्या होगा, follow up will ensure the implementation of recommendations made by the marketing researcher। और अगर recommendations को follow नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा, report may be left unopened। report open ही नहीं की जाएगी। जब open ही नहीं की जाएगी तो उसकी recommendations को follow नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, ultimately जितने भी efforts किए गए वो सब efforts waste हो जाएंगे। पॉइंट समझ आया? बोलो भाई। यस सर। जी सर। तो ये सब पार्ट हो गया आपका मार्केटिंग रिसर्च का। अब मार्केटिंग रिसर्च से ही रिलेटेड चीजें हैं कि हम लोग डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे। अगर डाटा कलेक्शन करना है तो डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, तो मेनली दो चीजें होती हैं, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। राइट, इंटरनल सोर्स क्या हुआ, मतलब विद इन कंपनी। तो विद इन कंपनी मार्केटिंग से रिलेटेड क्या चीजें हैं, उधर जाओ। कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सेल्स फिगर्स, सेल्स रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब इंटरनल सोर्सेज हैं। ठीक है, और जो इंटरनल सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करेंगे उसमें पैसा तो खर्च होगा नहीं। समझ गए? और अगर मान लो इंटरनल सोर्सेज से हम कोई डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते हैं या जो डाटा है वो इररिलेवेंट है, इनसफिशिएंट है, तब हमको क्या होगा, तब मजबूरी है कि हमें फिर एक्सटर्नल सोर्सेज पर जाना पड़ेगा।
समझ गए ना? माने फैक्ट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द कंपनी। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस के अलावा और भी सोर्सेस हैं क्या? प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ठीक है ना? तो प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा हम आप लोगों को अभी समझा चुके हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, मान लो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है, हम थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं, पहले बता चुके हैं आप लोगों को शॉर्ट में। प्राइमरी डाटा भी कलेक्ट करने के 3 मेथड है, हमने बताया, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड सर्वे मेथड। यही 3 मेथड तो बताए पीछे, Yes, अभी sir. पीछे यही 3 मेथड तो बताए थे। Yes, sir. हाँ, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या हुआ? इस मेथड में हम लोग यूज करते हैं टेस्ट मार्केटिंग। क्या यूज करते हैं? टेस्ट मार्केटिंग। दैट मीन्स टेस्टिंग सेल्स, प्रमोशन कैंपेन्स, फिक्सिंग राइट प्राइस, प्रोडक्ट्स, पैकेजेस, डिजाइन एटसेट्रा इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है? और इस अप्रोच में जो प्रोड्यूसर होता है कैरीज आउट अ स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट, ट्राइज टू गेट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन होगी विच कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन डिजाइनिंग लार्ज स्केल मार्केटिंग प्रोग्राम। Right? So this is overall your experimental method. Now second one is observation method. Second one is observation method. तो in observation method what happens? हम लोग क्या करते हैं? Data are collected by observing some action of the respondent. माने रिस्पोंडेंट को बताते कुछ नहीं है, वो उसको अननोन रखते हैं, सिर्फ उसको बात कर रहे हैं उससे, या उसका एक्शन देख रहे हैं, उसके माने उसके लाइफ में देख रहे हैं कि क्या वो पसंद करता है क्या नहीं करता। मतलब उससे बात नहीं करेंगे कि हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या कोई हिंट नहीं करेंगे उसको, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। डाटा आर कलेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग सम एक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट। No questions are asked in data collection. No interview is made. Actions or behavior of the customers are watched personally or mechanically. ठीक है? Means buyers may be observed personally by the observer while making purchases. That means जो जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, means buyer is unaware. Buyer unaware रहता है that he is being observed and acts in his usual way. उसको पता ही ना चले तो वो अपने नेचुरल वे में ऑब्जर्व अपना बिहेवियर कर रहा हो, और तब आप उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। ठीक, देखिए हर मेथड्स के मेरिट्स डिमेरिट्स भी हैं, और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के भी मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड के भी मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। ठीक है? फिर देखिए आया आपका नेक्स्ट है सर्वे मेथड। 3 ही तो बताए थे, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे। तो सर्वे मेथड क्या है? एक्चुअली अ सर्वे कंसिस्ट्स ऑफ गैदरिंग डाटा बाय इंटरव्यूइंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। तो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल माने लार्ज नंबर में से लिमिटेड नंबर हम छांटेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को से डाटा कलेक्ट करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? सैंपल। सेलेक्टेड फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप। तो एक सैंपल हम सेलेक्ट करेंगे ना, बोलो भाई। Yes, जी sir. सर। Actually this survey method is more effective than experimental or observation method.
तो इन द फैक्चुअल सर्वे respondents are asked to report actual facts as exemplified by questions. क्वेश्चन के द्वारा उनसे उनका रिस्पॉन्ड लिया जाता है. कैसे? what brand of this product you use, how many people live in your house, personal expressions are gathered, personal opinion is recorded. क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जैसे हाउ डू यू फील अबाउट दिस न्यू, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, इस पर्टिकुलर शैम्पू के विषय में या कार के विषय में या किसी भी क्षेत्र के विषय में, हाउ डू यू फील अबाउट दिस न्यू प्रोडक्ट, अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक. तो जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, प्रयास किया जाता है इंटरप्रेटिव डाटा हो, क्योंकि डाटा कलेक्ट हुआ और उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते तो वो दैट डाटा कलेक्शन इज वेस्ट. तो इंटरप्रेटिव डाटा शुड बी कलेक्टेड. वो कैसे करेंगे? उसके लिए फिर उसी तरह के क्वेश्चंस हमको पूछने होंगे. जैसे व्हाई डू यू यूज दिस पर्टिकुलर ब्रांड, मैंने ब्रांड ABCD ऑफ द प्रोडक्ट in your house or in your office, yeah, you use personally. या इसकी क्या चीज आपको अपील करती है, क्या इसमें ऐसा नया है या दूसरों से इसको डिफरेंशिएट करता है. जैसे एक वर्ड मार्केटिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, USP यूज होता है ना, बोलो, नाम सुना है नहीं? क्या सब लोग छोड़ गए क्या क्लास? नो सर. USP नाम? नो सर. वॉइस नहीं आ रही थी सर. अच्छा, USP नाम सुना है? नो सर. हाँ, यूनिक Yes. सेलिंग सर, यूनिक सेलिंग पॉइंट. यूनिक सेलिंग प्रोस्पेक्ट्स मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस है जिसकी वजह से प्रोडक्ट लोगों की तरफ किया जाता है या बिकता है. ठीक है. सर्वे कैन आल्सो बी कंडक्टेड इन 2 ways. कौन कौन से? सैंपल सर्वे एंड सेंसस सर्वे. सेंसस सर्वे में क्या होता है? मार्केटर कंडक्ट सर्वेस कवरिंग द इंटायर मार्केट. पूरी मार्केट को कवर किया तो सेंसस सर्वे हुआ. और अगर सैंपल लेकर के हमने सर्वे किया तो वो क्या हो जाएगा? सैंपलिंग सर्वे हो जाएगा. कि अगर पूरे ग्रुप में से एक पार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? सैंपल सर्वे हो जाएगा. तो अब इन दोनों को भी अगर हम कंपेयर करें तो नॉर्मली फ्रीक्वेंटली क्या चीज यूज होती है? सैंपलिंग सर्वे इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड. ठीक. तो सैंपलिंग मेथड में डाटा कैसे कलेक्ट होंगे? फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा या थ्रू क्वेश्चनायर होगा या टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा. यही तो होगा ना? बोलो भाई. यस सर. यस सर. तो पर्सनल इंटरव्यू में हम क्या करेंगे? इस मेथड में पर्सनली पीपल विल बी कॉन्टेक्टेड पर्सनली एंड इंफॉर्मेशन विल बी ऑब्टेन्ड. तो इसमें क्या हम पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे तो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होगी हमारी वो दूसरे किसी भी मेथड से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी. और मान लो कोई क्वेश्चन अगर पर्सन को नहीं समझ में आ रहा रिस्पोंडेंट को तो आप उससे तुरंत उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं. नहीं समझ पाया तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे कि आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड डाटा है, वो आपको निकालने में या प्राप्त करने में या कलेक्ट करने में आसानी होगी. ठीक है. अब इंटरव्यू भी कई तरह के हो सकते हैं. डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू हो सकता है. ठीक. अब जैसे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू ये तो सही है, ये तो समझ गए.
इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू क्या है, बता सकता है कोई? और ये कब करने की जरूरत पड़ती है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू? एनीवन एल्स? सर जैसे हम किसी कस्टमर से एज अ मतलब हम है तो रिसर्चर, एज अ कस्टमर मतलब ट्रीट करें कि जैसे वो सामान लेने आए, हम भी सामान लेने आए, और उससे जो है इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछो, उसे प्रोडक्ट का रिव्यू ले, उसकी पसंद का रिव्यू लें, और उसे ये ना पता चलने दे कि हम भी रिसर्चर हैं। नहीं 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 नहीं, ये इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू इंटायरली डिफरेंट चीज है। इसको इस ढंग से समझो कि जैसे बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए जिस चीज से रिलेटेड या जिस व्यक्ति से, मगर हम उस व्यक्ति से डायरेक्टली वो चीज नहीं पूछ सकते। सर जैसे मीडिएटर का या थर्ड पार्टी का यूज करते हैं। हाँ हाँ, थर्ड पार्टी, मगर ऐसे कौन से केस हो सकते हैं ये तो बताओ, तुमने दिमाग तो लगा दिया। थर्ड पार्टी तो बता दिया, ऐसे कौन से केस हो सकते हैं बताओ? इंश्योरेंस के संदर्भ में सर जैसे कोविड पेशेंट्स हो गए तो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना। सर जैसे कोविड पेशेंट्स हो गए, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने में मतलब थोड़ा डेंजर हो सकता है, तो हम उनके डॉक्टर्स या नर्सेस को उसके द्वारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उनके बारे में। हाँ हाँ, मगर कोविड पेशेंट से ही काहे मार्केटिंग की जानकारी ले हुए? सॉरी सर ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल हो गया। हाँ, बाकी ठीक है, सर बट मगर इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू का एक एग्जांपल है, बट मार्केट से रिलेटेड नहीं है, मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है। मार्केट से संबंधित बात बता रहे हैं भैया, मार्केटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित एग्जाम्पल बताओ। ये तो आप हमको घुमाए दे रहे हो। अब देखो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जुआ खेलता है या ड्रिंक करता है, ठीक है, तो अब उससे आप उनकी इन बैड हैबिट्स के संबंध में अगर कोई क्वेश्चन पूछना, इंटरव्यू करना है तो आप नहीं कर पाओगे ना, वो आपको मारेगा, अच्छी अच्छी बातें सुनाएगा, है ना? होगा कि नहीं है? यस सर, यही होगा। तो फिर ऐसे लोगों के संबंध में आप ये इनडायरेक्ट मेथड यूज करें, उनके पड़ोसी हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, समझ गए ना? या मान लो कोई ड्रिंक करने वाला है, परमानेंट एक ही शॉप में जाता है, तो जो लिकर शॉप है उस लिकर शॉप कीपर से आप पूछ सकते हैं भाई उस व्यक्ति के विषय में, समझ गए ना? फ्रेंड्स, नेबर्स एटसेट्रा। पॉइंट समझ आ गया? इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, डायरेक्ट तो सब पर्सनल इंटरव्यू तो मालूम है, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू समझ आ गया? यस सर, क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका पर्सनल इंटरव्यू। दूसरा क्या है? मेल क्वेश्चनर मेथड। मींस आप एक ब्लैंक क्वेश्चनर बनाएंगे, उसको मेल करेंगे अलोंग विद द कवरिंग लेटर, और रिक्वेस्ट करेंगे उससे कि भाई जो हम आपको क्वेश्चनर भेज रहे हैं उसको फिलअप करके हमको भेज दीजिए। समझ में आ गई बात? अब इसी में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्वेश्चनर क्या होता है, कैसे फ्रेम करना चाहिए, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। जी ठीक? सर। हाँ, जी जी क्वेश्चनर के विषय में जैसे ब्रीफ में होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, आसानी जी से, ठीक है ना? और क्वेश्चंस जो है ऐसे हो कि जिनका आंसर इजीली दिया जा सके। अब क्वेश्चन इस तरह ना पूछ लो कि उसे 5-6 लाइन या आधा पेज लिखना पड़े उसमें, ठीक? एम्बिगुअस क्वेश्चंस नहीं, उस पे आप दीजिए लाइक दिस। समझ में आ गया? यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू नहीं, अभी तीसरा टेलीफोनिक। तो सिंपल चीज है, अभी भी जैसे आप लोग मोबाइल वगैरह यूज करते हो तो अक्सर टेलीफोन कॉल्स आ जाती हैं रिलेटेड टू मार्केटिंग या रिलेटेड टू माने ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड भी कॉल्स आ सकती हैं, या आप टेलीफोन का यूज कर सकते हैं फॉर कलेक्टिंग डाटा आल्सो। यस सर। ठीक, अब देखिए इसमें सैंपलिंग जो होती है, तो सैंपलिंग आपकी सिंपल सैंपलिंग हो सकती है, रैंडम सैंपलिंग हो सकती है, मींस रैंडम और नॉन रैंडम,
और मगर जो रैंडम सैंपलिंग होगी, रैंडम सैंपलिंग भी रैंडम सैंपल सिंपल रैंडम हो सकती है। सिंपल रैंडम में आपका लॉटरी मेथड हो सकता है। सिंपल रैंडम मेथड में आपका लॉटरी मेथड हो सकता है, या दूसरे और तरीके के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं जो कि आप यूज करेंगे। तो मगर मेन चीज क्या है जो ध्यान रखनी है कि हम जो भी सैंपल कलेक्ट करें या जो भी सैंपल लें अपनी स्टडी के लिए, वो एक अच्छा सैंपल होना चाहिए, अनबाइस्ड सैंपल होना चाहिए, जिससे कि हमको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए। तो एक अच्छे सैंपल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ये कि इट मस्ट बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, होमोजेनिटी होनी चाहिए, ये इन रियल सेंस रैंडम होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, प्रपोर्शनल होना चाहिए। एक अच्छा सैंपल, ये हम इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीडली कराए दे रहे हैं। सिंपल चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी और आप लोगों को आइडिया भी होगा। ठीक, फिर देखिए सेकेंडरी डाटा के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, जर्नल्स, लाइब्रेरीज, और कंपनी में इंटरनल अकाउंट्स, रिपोर्ट्स, ठीक है ना, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, हाँ, जर्नल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। मगर जब भी हम सेकेंडरी डाटा यूज करें तो हमको सावधानियां बरतनी चाहिए, और सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सुटेबिलिटी ऑफ डेटा हो, एडिक्वेसी ऑफ डेटा हो, और रिलायबिलिटी ऑफ डाटा हो। समझ गए? आंख बंद करके हमको सेकेंडरी डाटा यूज नहीं करना चाहिए कि बस डाटा मिल गया हम यूज कर लें, हमारे लिए यूजफुल है या नहीं। और लास्ट पार्ट, बस 2-3 मिनट लेंगे आप लोगों के, कि ये सब हम लोगों ने मार्केटिंग रिसर्च के विषय में तो कुछ चीजें डिटेल में, कुछ चीजें शॉर्ट में हम लोगों ने पढ़ी या डिस्कस की, मगर अल्टीमेटली ऐसा नहीं मार्केटिंग रिसर्च अकेले सफिशिएंट ही है, बहुत बढ़िया ही है। हर चीज जिसमें अच्छाइयां होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, जिसमें मेरिट्स होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है मार्केटिंग रिसर्च। क्या क्या लिमिटेशंस है? कि सबसे पहली चीज तो ये है कि मार्केट रिसर्च का वर्क क्वालिफाइड और ट्रेंड पर्संस के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ठीक है? और ऐसे पर्सन आसानी से आपको नहीं मिलेंगे, माने मेहनत करनी पड़ेगी जो ऑनेस्टली रिसर्च वर्क कंप्लीट करें। सेकेंडली, ये वर्क एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होगा, लिमिटेशंस है ये। ठीक, फिर अगर रिसर्चर किसी प्रॉब्लम के प्रति बाइस्ड है तो क्या होगा? वो वैसे ही डाटा कलेक्ट करेगा, तो जो रिजल्ट्स होंगे वो भी मिसलीडिंग और अनसेटिस्फैक्टरी होंगे। Am I right? सर Then, फिर it is not an end itself. It presents the correct information for decision making. मैंने जो भी रिजल्ट आए, जो भी कंक्लूजन निकला, ठीक है, उसके बेसिस पर डिसीजन लिए जाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, माने तो जब करेक्ट रिजल्ट होगी तभी हमारे करेक्ट डिसीजन मेकिंग होगी। और लास्टली, बाय द टाइम रिजल्ट्स आर रेडी, कि जब तक पूरा रिसर्च वर्क हुआ, रिपोर्ट प्रिपेयर हुई, वो प्रेजेंट हुई, ओपन की गई, उस पर डिस्कशन किया गया, और तब तक पता चला इतना टाइम निकल गया कि जिस प्रॉब्लम के लिए ये रिसर्च कराई गई थी वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, या वो प्रॉब्लम ही टाइम बार्ड हो गई। मतलब रिपोर्ट हमारी जो है वो वैल्यूलेस हो गई, उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया, कोई यूज ही नहीं रह गया। ये भी तो हो सकता है। यस क्योंकि टाइम टेकिंग है, एक्सपेंसिव भी है, तो ये चीजें हो सकती है। तो दीज आर एक्चुअली द लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, वैसे हमें पूछना नहीं चाहिए, कि कुछ पूछना तो नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही ऊब चुके होंगे कि जल्दी ये जान छोड़ें। टाइम ओवर भी हो चुका है, 10 मिनट करीब करीब आप लोगों क्लास के हिसाब से। तो हम पूछेंगे भी तो सब फॉर्मेलिटी में ही कहेंगे, हाँ सब क्लियर है, सब समझ में आ गया, थैंक यू, क्लास खत्म हो गई, यही होगा ना?
बोलो भाई। आप लोगों को थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम है, हम 1-1.5 घंटे से कम बराबर बोल रहे हैं। बोलना है कि नहीं बोलना है? नो सर, ऐसी सर कोई आप बात एकदम क्वेश्चन घुमा देते हैं। हम जैसे क्या घुमा दिया? सर आप ऐसे बोलते हैं कि मतलब अब सामने वाला क्या ही बोले फिर। अरे भाई, तो ये हमारी कमी हो गई, फिर ये तो हम फेल हो गए आप लोगों की नजरों में। अरे सर वो पढ़ाने की बात नहीं कर रहे सर, जैसे आप बोल रहे कि ऊब गए होंगे फिर पढ़ नहीं रहे होंगे, इन सब चीजों के बारे में बोले तो उसपे कुछ हाँ भी बोले तो भी निगेटिव इम्पैक्ट है, ना भी बोलो तो भी, तो हम लोग खुद ही फंस जाते, तो इसलिए कोई रिप्लाई नहीं करता उस पे। अच्छा, दिल पे हाथ रख के बोलो, हमने सही बोला गलत बोला? सर नहीं गलत बोला है। अरे सर बोल तो रहे हैं। चलो एनीवे, देखिए पॉसिबिलिटी तो हर चीज के लिए होती है, लेकिन अब बिल्कुल अगर बिल्कुल बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं तो फिर उसके लिए हाँ की जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक बात, ये 2-3% बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन पूरी 100% नहीं है, तो इसलिए नहीं ही है सर। बिल्कुल 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 नहीं, चूंकि आज क्लास में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हुआ, हमने भी थोड़ा स्पीडली किया क्योंकि लंबा टॉपिक था, है ना। और एक टॉपिक अगर एक लेक्चर में ना खत्म हो, फिर वो आगे कंटिन्यू होने पर भी वो मजा नहीं आती कि पहले हम थोड़ी देर आज का बैकग्राउंड हम लोग डिस्कस करते, थोड़ा टाइम उसमें जाता, फिर आगे का डिस्कस करते तो टाइम वेस्ट होता। तो जैसे एक टॉपिक उठाया था हम लोगों ने, मार्केट रिसर्च एंड रिलेट मार्केटिंग रिसर्च, तो वो पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसीलिए लास्ट में हमने भी थोड़ा सा स्पीडली भी किया और सिर्फ पॉइंट्स ही एक्सप्लेन किए, बहुत डिटेल में नहीं है क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था, मैं खुद देख रहा था। बट इवन देन कुछ बहुत पर्पस सर्व हुआ आज की क्लास का और आज के टॉपिक से रिलेटेड, कि नहीं? जी सर। यस सर। यस सर। ये बहुत थकी आवाज, किसकी आवाज थकी हुई? शालिनी? सर थकी नहीं है, तबीयत सही नहीं है, अच्छा तो भाई गला ऐसा, बैठा हुआ है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखा लो बेटा, तबीयत इसमें सीजन मौसम ऐसा ही चल रहा है, तो डॉक्टर को दिखाइए, प्रॉपर मेडिकेशन भी करिए। जी सर। तो अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या आपका होना चाहिए, आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग वाला। यस सर। सिलेबस में वही है ना? यस सर। हाँ तो चलो एनीवे, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमको आज तक की ही जिम्मेदारी दी गई थी, तो हमने आज तक का काम तो अपनी समझ में पूरी ऑनेस्टी के साथ किया। अब कितना ऑनेस्टली हो पाया, आप लोगों का कुछ भला हो पाया कि नहीं हो पाया, ये तो आप लोग ही बेटर बताओगे। हाँ तो अब बाकी आप लोग नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, और आज हम लोग क्लास कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। हाँ कंप्लीट की जाए, क्लास फिनिश की जाए, मीटिंग एंड की जाए। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक